वो पूरा किया। God is very kind and his work does not stop, and he has prepared his soldiers and he has provided the ministry in his church so that the work of the Lord should go on. प्रभु बहुत दयालु है और वो उसका काम कभी भी नहीं रुकता। वो उसने अपने योद्धाओं को तैयार किया होता है जो कि वो प्रभु का कार्य जो है पूरा करते हैं। Physically, many servants of God who are living today or who were living in the past, some of them are not with us today and some of them are, but God knows the timing, but the Lord completes his own work himself. और बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं जो अब जमीन पे नहीं भी रहे और जो अभी हैं, तो प्रभु का कार्य जो है वो चलता रहता है। Because our focus is not on the man, our focus is on the Lord Jesus Christ. क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई मनुष्य नहीं है, हमारा उद्देश्य प्रभु परमेश्वर है। Because he is the one who is our Savior. क्योंकि वो एकमात्र ही है हमारा जो उद्धार करता है। The love manifested in his Son on earth. प्रभु का प्रेम जो प्रकट हुआ वो उसके पुत्र के रूप में हुआ। God has used wonderful men, those who have been dedicated, those who were faithful to him, to take his word all over the world. और प्रभु ने हमें एक ऐसा सेवक दिया जो पूरी तरह से प्रभु के कलाम में पूरी तरह समर्पित था। We know that some time ago, our beloved brother Frank was taken into glory. और हम जानते हैं कि कुछ समय पहले हमारे प्यारे भाई प्रभु के दास भाई फ्रैंक महिमा में चले गए हैं। And many years before, the prophet for this time, sent by God, brother William Branham, was also taken in glory. और उससे पहले इस सदी के जो नबी हुए हैं भाई ब्रानम, वो भी प्रभु के महिमा में जा चुके हैं। They have all done the job which God gave to them to do. और इन्होंने सब ने उस सेवकाई को पूरा किया जो भी प्रभु ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी। And but the work of God does not finish there. लेकिन अभी भी प्रभु का कार्य पूरा नहीं हुआ है। The work of God is continuing till Lord Jesus Christ returns. और ये प्रभु की सेवकाई तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा प्रभु वापस नहीं आ जाता। The work of God will continue even after the rapture until God makes the new heaven and the new earth. और प्रभु का ये सेवकाई प्रभु की रैप्चर के बाद भी चलती रहेगी और जब तक नया आकाश नई पृथ्वी नहीं बन जाती। God has given us the timeline of his program in the Bible. लेकिन प्रभु ने हमें इन सभी चीजों का एक समय दिया है अपने पवित्र वचन में। God has a calendar for this world. और प्रभु के पास इस संसार का एक नक्शा है, एक कैलेंडर है। Because the calendar is required when the time is there, when we are in time zone, time dimension. और कैलेंडर की आवश्यकता होती है एक समय के लिए, दिनों के लिए, पीरियड के लिए। Because we are living in the time dimension. क्योंकि हम एक समय के अंदर रह रहे हैं। God created time dimension so that God can express himself to us. और प्रभु ने ही इन समयों को बनाया है और प्रभु इनमें अपना कार्य करता है। So that we should know who is God. और ताकि हमें पता होना चाहिए कि कौन प्रभु है। And not only we will know God and follow God, but we will take the same God to the other people. यही नहीं कि हम प्रभु को सिर्फ जानते हैं और मानते हैं और हम उस प्रभु को पाएं,
We must take him, we must show him to the other people of this world. बल्कि हमें उसी प्रभु को दूसरों को बताना है, दिखाना है उस प्रभु को। Just to be saved is good, but that is not enough. हम सुरक्षित हैं, बचाए हुए हैं, ये ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। We must work towards that other people should learn and know about the salvation. हमें सेवा करनी है, दूसरों को बताना है लोगों को, ताकि दूसरे लोग जान पाएं और बच पाएं। Before Jesus left this earth after his resurrection, जब प्रभु इस संसार से गया और उसके बाद जब प्रभु जिंदा हुआ, when he got resurrected, then he was living with his disciples and with some other people for few days. और प्रभु जब जिंदा हुआ तो प्रभु कुछ दिन अपने चेलों के साथ रहा। God always shows to his people what God is doing. और प्रभु ने हमेशा से ही अपने लोगों को बताया है कि प्रभु क्या करता है। God had a plan to save us from our sin. और प्रभु के पास योजना है हमारे पापों से छुटकारे की। The plan was already with God before he created the world. और ये योजना प्रभु के पास पहले ही से थी, जबकि संसार भी नहीं बना था। But he wanted to show this plan to us. पर कि वह उस योजना को हमें बताए। Because how will we know that what plan God has and how he will save us? और फिर हम किस तरह जान पाते कि प्रभु के पास योजना है और प्रभु हमें बताएगा। So God made this plan and God allowed this to happen, that God was manifested in a human body. इसलिए प्रभु ने योजना बनाई और इस योजना को पूरा किया और वो एक शरीर लेकर इस संसार में आया। Through the human body, he spoke to us and did lot of wonderful things and also completed the plan of our redemption. और वो शरीर में आया और उसने बड़े अद्भुत कार्य किए, बहुत मजे किए और हमारे पापों के छुटकारे के कार्य को पूरा किया। And God already wrote in his word through his people, inspired word, that the word became flesh and dwelt amongst us. और प्रभु ने अपने कलाम में ये बताया, साहित्य किया, और वही प्रभु, वही कलाम वो उस शरीर में आ गया। If God does anything in this on this earth for his people, God himself gives a testimony of that. और जब भी प्रभु कुछ भी अपने लोगों के लिए संसार में करता है तो वो एक गवाही रखता है। Without testimony, God doesn't work, because we will not know where is it coming from. Who is this? बिना गवाही से प्रभु कार्य नहीं करता। So that's why God first said it in his word, and when the time was fulfilled, then the word was fulfilled. इसीलिए प्रभु ने सबसे पहले अपना वचन भेजा और जब समय आया तो उसने वही वचन को दे दी, शरीर दिया। The same word came in the form of flesh. और वही वचन जो था, वही वचन शरीर लेकर आ गया। And he was not only speaking the word, he was doing the word. पार्डन ब्रदर। He was not only speaking the word, he was also proving and doing the word. वो सिर्फ कलाम ही नहीं था, बल्कि उसने वो कलाम बोला और वो साबित भी किया। When he said he loves us, he showed the love in action. जब उसने बोला कि वो हमसे प्रेम करता है तो उसने उस कलाम को, उस वादे को साबित करके भी दिखाया। Same thing when we are the followers of the same God, और उसी तरह जब हम सभी उसी प्रभु के ही चेले होते हैं, then we must also put the love of God
which we received, we must also show it to other in action. तो उसी तरह हमने जैसे उससे वो प्रेम पाया, हमें भी वही प्रेम आगे दूसरों को भी दिखाना है। This is our job on this earth. ये हमारी जिम्मेदारी है इस संसार में। When Jesus was resurrected after his death, जब प्रभु तीसरे दिन जिंदा हो गया, he showed himself to his disciples and many other people. उसने अपने आप को अपने चेलों को और लोगों को दिखाया। And before he ascended into heaven, he gave them a very important command. और इससे पहले वो स्वर्ग उठाया जाता, उसने एक बहुत जरूरी जरूरी कलाम दिया। This commandment was written in Matthew 28. और ये जो हुक्म था वो मत्ती 28 में पाया जाता है। This is just before he was raised into heaven. ये वही है जब उस स्वर्ग से जाने से पहले बोला उसने। First of all, he told them that he received all authority from the Father. उससे पहले बताया कि स्वर्ग का पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। Jesus used to call God his Father. और प्रभु परमेश्वर परमेश्वर यीशु परमेश्वर को पिता कहता है। In the form of the Son, he must have a father. और जब वो शरीर में है तो जरूरी है कि उसका पिता है। And that is what was his testimony, that I have come from my Father has sent me. और इसीलिए वो गवाही देता है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। And he used to say, the Son can do nothing unless the Father shows him. इसीलिए वो कहता है कि पुत्र तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक पिता ना उसे कहे। But who is the Father? लेकिन पिता कौन है? Father is the Holy Ghost. पिता पवित्र आत्मा है। When Jesus was making this statement, he is not talking about two persons in God. जब प्रभु इस तरह कहता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कहीं दो व्यक्ति हैं। We must have a very clear understanding about Godhead, brothers and sisters. भाई और बहनों, हमें एकमात्र सच्चे परमेश्वर की समझ बिल्कुल सही सही होनी चाहिए। If we have any doubts in that, it is a very dangerous condition for us. अगर हमारे बीच में कोई शक है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। We must pray honestly to God if we have any doubts or any questions about this matter. लेकिन अगर हमारे बीच में कोई शंका है तो हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु से मांगना है कि प्रभु उसे समझाए। This is exactly the verse which Brother Surinder was quoting just in the beginning of this meeting. और जिस तरह हमारे प्यारे भाई सुरिंदर ने इस सभा की शुरुआत में एक कलाम हमसे जो साझा किया है वो उसी के बारे में है। Because that was in the book of John, Gospel of John, जो कि यूहन्ना की अंजील में उसके 8 अध्याय में है। and in the verse 23 and 24. और 23 और 24 आयत में ये प्रभु का कलाम पाया जाता है। God gave this verse to Brother Surinder so that he could share it with the other brethren on this platform. और हमारे प्रभु ने ये कलाम हमारे भाई सुरिंदर को दिया ताकि भाई सुरिंदर और भाइयों बहनों के साथ इसे साझा करे। Brother Surinder said this verse became a blessing for him, and when he said this became a blessing for us also. भाई सुरिंदर ने गवाही दी कि जब उन्होंने ये आयत पढ़ी तो उन्हें बहुत सारी आशीष मिली, और जब उन्होंने हमें ये कलाम दिया तो हम सबको इसी कलाम वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष मिली है।
what we have been speaking in last few minutes, और जो भी हम कुछ समय से बात कर रहे हैं, what we spoke few minutes before, और जो भी कुछ हमने कुछ समय पहले बोला, that is all connected with this verse from the Bible. और वो सब कुछ इस वचन के साथ ताल्लुक रखता है, Because this is what Jesus wanted to say, and this is the whole purpose why Jesus was sent into this world. और ये प्रभु ने बोला है, और प्रभु का ये मकसद है जो बताना चाहता है सारे संसार को। He kept on telling the crowd, kept on telling the Pharisees, kept on telling the people and his disciples that I have come from my Father. और उसने अपने चेलों को, फरीसियों को, सदूकियों को, भीड़ को ये बताया कि मैं अपने पिता की ओर से आया हूँ। He did not come from his worldly father, Joseph. और उसने बताया कि वो कोई अपने इस संसारिक पिता जोसेफ से नहीं आया है। His father is the Father in heaven, the Almighty God. और उसका पिता जो स्वर्ग में है, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So he says in the verse 23 of John chapter 8, और इसीलिए प्रभु ने यूहन्ना 8 के 23 और 24 में ये कलाम बोला। he is talking to his disciples वो अपने चेलों से बात कर रहा है, because we know in this chapter the disciples were asking to show the Father, who is the Father and what happened, who is this Father. क्योंकि यहाँ पर सवाल आया है चेलों के द्वारा कि पिता कौन है। And in the verse 18, in the 18th verse of chapter 8, विच चैप्टर ब्रदर? chapter 8, verse 18, जब हम इसी 8 अध्याय की 18 आयत में देखते हैं, then the Lord says, ऐसे प्रभु कह रहा है यहाँ, I am one who bears witness of myself, and the Father who sent me bears witness of me. एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। Now, here we see two witnesses. और यहाँ हम दो गवाहियां देखते हैं। Now, in the one verse above that, in verse 17, let us see what it reads. और 17 आयत देखें क्या लिखा है। It is also written in your law that the testimony of two men is true. और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। So now he is telling to the Jews and Pharisees, whoever is around him, that for making anything to confirm, you need two testimonies. और वो बता रहा है उन सबको कि व्यवस्था के मुताबिक दो जनों की गवाही ठीक है। And in the 18th verse, he is telling which are those two testimonies. और 18 आयत में वो बता रहा है कि वो दो गवाह कौन है। One is himself and one is the Father. वो खुद गवाह है, दूसरा उसका पिता। Father is giving the testimony of Son, and Son is giving testimony of Father. पिता जो है वो पुत्र की गवाही दे रहा है, पुत्र जो है वो पिता की गवाही दे रहा है। And spiritually, they both are one. और आत्मिक रूप में ये दोनों एक हैं। That is how their testimony agrees and becomes one. इस तरह दोनों की गवाही आपस में सहमत है और ये दोनों एक बनते हैं। And in the 19th verse, when they ask him, where is your father? जब 19 आयत में उन्होंने ये सवाल किया कि तुम्हारा पिता कहाँ है। Because now Jesus is talking about his father and his father. So they ask him, where is your father? क्योंकि प्रभु यहाँ अपने पिता के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारा पिता कहाँ है। And then he says, you know neither me nor my father.
if you had known me, you would have known my Father also. और प्रभु ने फिर उत्तर दिया, ना तो तुम मुझे जानते हो, ना मेरे पिता को जानते हो। यदि यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। What a great statement this is, brothers. और कितनी महान महान बात है भाई और बहनों। You are asking to show the Father, but I have told you that if you had known me, you would have known my Father also. और कितनी यहाँ देखिए महान बात प्रभु ने कही कि जब वो सवाल कर रहे हैं कि पिता कहाँ है, और प्रभु कह रहा है ना तुम मुझे जानते हो और ना पिता को जानते हो। Because he says that if you had known me, who I am, from where I am coming, then you will not ask this question. क्योंकि प्रभु कहता, अगर तुम जानते कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, तो फिर तुम ये सवाल ना करते। Then you will know the Father automatically. तो अगर तुम मुझे जानते तो तुम अपने आप पिता को भी जानते। Because you don't know me, that's why you are asking the question. क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम ये सवाल कर रहे हो। This lesson is for us also. और यही जो शिक्षा है हमारे लिए भी है। Many people think that, especially our friends from Trinity, they think Jesus Christ came on this earth like a young boy, and when he talks to the Father, that means there is a Father sitting in the heaven, an old man sitting on the chair of a Father in heaven. बहुत सारे लोग, खास करके हमारे जो भाई बहन त्रिएकता को मानने वाले हैं, वो ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे की तरह पैदा हुआ, एक नौजवान की तरह चला फिरा, और उसका जो पिता है वो स्वर्ग में बैठा है, ओल्ड है, बूढ़ा है, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा ऊपर बैठा, उसका पिता है वो। They were completely blind and ignorant who think like this. ये वो पूरी तरह अंधे हो चुके हुए हैं, वो इस प्रकाशन को देखिए ठुकरा देते हैं। The answer is very simple. जबकि उत्तर जो है वो कितना कितना साफ साफ है उत्तर। To know the Father, we must know the Jesus. कि अगर पिता को जानना है तो पुत्र को जानना है। Because the testimony of the Son is for the Father, and testimony of the Father is for Son. क्यों? जो पुत्र की गवाही है वो पिता है, और जो पिता की गवाही है वो पुत्र है। That is why he says in the following verses 23 and 24, इसीलिए प्रभु ने आगे जो 23 और 24 आयत में प्रभु ने बोला है, he made it more clear for them. और प्रभु ने उनके लिए और ज्यादा साफ साफ बता दिया। Because he says in verse 23, you are from beneath and I am from above. You are of this world and I am not of this world. और यहाँ पर प्रभु ने 23 में बोला है कि तुम तो नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। Because he is indirectly telling them that if you know me, then you will know from where I have come. तो प्रभु यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मुझे जानते तो फिर तुम ये भी जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ। And then he further says in verse 24, और फिर आगे प्रभु ने 24 आयत में बोला, he says, you will die in your sins if you do not believe that I am he, you will die in your sins. 24 आयत में, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। Now, in English, he says, I am he. और इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह है कि मैं हूं। And who is that I am?
अब ये मैं हूँ कौन है? He is the same I am who spoke to Moses. ये वही है जो पुराने नियम में जो मोसेस को कहता था कि जो हूँ, मैं हूँ जो हूँ। The Almighty God. अद्भुत परमेश्वर। Now, Jesus is telling that anybody who does not believe who Jesus is, he will die in the sin. अगर प्रभु ने कहा कि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। Jesus has made it very clear, brothers and sisters. प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ साफ साफ बता दिया To know God, we must know Jesus. कि प्रभु को जानना है तो प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। God is our Redeemer. प्रभु हमारा छुटकारा देने वाला है। God is our Savior. प्रभु हमारा बचाव करने वाला है। And we know that Jesus is our Savior. यीशु हमारा उद्धार करता है। So, can we have two Saviors? तो क्या हमारे पास दो उद्धार करता है? One Savior is Father and one Savior is Son. एक उद्धार करता, एक पुत्र उद्धार करता। So, which Savior we should follow? तो किस उद्धारकर्ता के पीछे चलें? That is why Jesus spoke these statements. तो इसलिए प्रभु ने यहाँ उद्धार बताया That if we want to feel, if we want to, uh, you know, if we want to know the will of God that He is the Savior, तो अगर तुम जानना चाहते कि वो उद्धार करता है then we must know Jesus. तो तुम्हें जरूर जानते कि यीशु मसीह कौन है। God is the Savior. परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। God Elohim is the Savior. परमेश्वर एलोहिम हमारा उद्धार करता है। His quality, His attribute of Savior is along with so many other attributes in Elohim. उसमें बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण जो है कि वो अपने लोगों को छुटकारा देता है। And also His love for us. उसका प्रेम भी हमारे लिए है। How did He show His love for us? और किस तरह फिर उसने अपना प्रेम साबित किया? By sending His Son into this world. उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। It is not the way we have our children in our families. It is not that way. इस तरह नहीं जिस तरह हमारे परिवारों में हमारे बच्चे होते हैं। Our children are born from our seed. हमारे बच्चे हमारे द्वारा पैदा होते हैं। Therefore, we put the seed of sin, sinful nature in our children, and they are born in sin. इसीलिए जो हमारे इस खून में पाप है वो ही आगे चलता है। But Jesus was not born in this manner. We know that. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से पैदा नहीं हुआ। He is the seed of God that is came through the Holy Spirit by the word of God, which angel Gabriel brought as a message to Mary. परमेश्वर का कलाम जो वचन का बीज था वो प्रभु ने फरिश्ते द्वारा मरियम के अंदर गया। And that seed become the human body. और वो जो बीज था उसने मनुष्य शरीर लिया। That is how the word became flesh. और इस तरह जो वचन था वो देहधारी हुआ। Because the seed was the word. क्योंकि जो बीज था वो प्रभु का वचन था। Angel brought the word. जो फरिश्ता था वो प्रभु का वचन लेकर आया। The angel brought the word seed. जो फरिश्ता था वो वचन का बीज लेकर आया। And that word seed was faith by faith accepted by Mary in her heart. और जो वचन का बीज था वो मरियम ने विश्वास के साथ उसे ग्रहण किया। And then only she conceived, and that word seed became the body.
और इसीलिए जो वो वचन विश्वास के द्वारा लिया गया था, वो देह ले गया, शरीर लिया। This is what Jesus wants his disciples to understand. और ये प्रभु अपने चेलों को समझाने चाहता था That understand who I am. कि वो समझ जाएं कि मैं कौन हूँ। The same thing he asked to 12 disciples in Matthew chapter 16. और ये फिर प्रभु ने सवाल मत्ती 16 में किया है। He asked all his disciples, उसने सभी चेलों से पूछा and he said that who do you think I am? उसने सवाल किया कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। But if we think about Jesus in a human manner, अगर तुम सोचते हो कि प्रभु जो है ये मनुष्य है, if we think like a human being, how to define Jesus, how to talk about Jesus, अगर सोचते हो कि मनुष्य रूप में वो कैसे बात करता है, क्या करता है, then we will not understand Jesus. तो फिर हम प्रभु को नहीं समझ पाएंगे। Knowing Jesus is a spiritual matter यीशु मसीह को जानना ये आत्मिक विषय है, because Jesus is born by the Holy Spirit. क्योंकि प्रभु भी पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। Father of Jesus is Holy Spirit. पिता जो है वो पवित्र आत्मा है And Holy Spirit is God. और आत्मा ही परमेश्वर है। That is how Jesus is also God, और इस तरह यीशु मसीह भी परमेश्वर है, because he is carrying the same seed, the same word. क्योंकि वो वही कलाम को, वही बीज को लेकर चला। And if we believe like this, और अगर हम भी इसी तरह then विश्वास then करते हैं, we will not die in our sin. तो हम भी अपने पापों में नहीं मरेंगे। We must know Jesus like this. और हम प्रभु यीशु मसीह को इस तरह जानते हैं। So who will know him? Who will know that Jesus is like this? और कौन अब जानता है कि यीशु यही है? Those who are the predestinated seed. जो लोग जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने चुने हैं। Brother, can you your mic little close? Your voice is very weak. तो इस तरह जो है वो लोग जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुने हुए हैं। Yes. And how they have been chosen? और वो चुने किस तरह हुए हैं? What is the method of choosing? वो चुनने का जो तरीका है वो क्या है प्रभु का? God has done the choosing, but how? प्रभु ने चुना, लेकिन किस तरह चुना? God has not simply chosen, okay, I like this man, I don't like this man, so I'm choosing him. इस तरह नहीं कि ओ मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ और इसको नहीं करता, इस तरह नहीं। God is not doing any favor to a people. और प्रभु इस तरह पर नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेता God does not respect a human being. और ना ही वह किसी मनुष्य की इज्जत करता। God respects his own word. प्रभु अपने कलाम की, अपने वचन की इज्जत करता है। Those who are found in his word, those who follow his word, God respects them. और जो भी प्रभु के कलाम की इज्जत करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, प्रभु उनकी भी इज्जत करता है। So when we say predestination, that does not mean that God just made a rough list, a list by without thinking anything. He made a list and he predestinated. और जब हम बात करते हैं जगत से पहले चुने हुए होनों की, तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु ने एक लिस्ट बना रखी है। God knows us before we were born. क्योंकि प्रभु हमें हमारे जन्म से पहले ही वो जानता था। So God predestinated us by the foreknowledge. इसीलिए प्रभु ने अपनी दूरदर्शी उस ज्ञान से वो इस समय जानता था। God knows when this person will be born in this world, will he and will she follow me with their whole heart?
तो प्रभु जानता था कि जब ये कोई भाई या बहन इस संसार में पैदा होगा, वो पूरे ईमान से, पूरे दिल से मेरे पीछे चलेगा। Predestination is not God designed for us, तो जगत से पहले चुनना ये कोई प्रभु ने डिजाइन नहीं किया हमारे लिए, but God has given us a choice to choose between heaven and hell. लेकिन प्रभु ने हमें चुनाव करने का पूरा मौका दिया कि चाहे चाहे नरक, जो भी हम चुन सकते हैं। We can choose this when we are born in this world. और जब हम चुनते तब हैं जब हम इस संसार में आते हैं, Then only we can do the choosing. तभी हम चुनाव कर सकते हैं। Adam could not do a choosing when he was spiritually created, and Eve and Adam were together in the form of a spiritual form. आदम तब नहीं चुन चुन सका जब वो आत्मिक रूप में आया था, पैदा हुआ था। Adam and Eve could make a choice when they were in human form. आदम और हवा ने तभी चुनाव किया जब वो मनुष्य शरीर में पैदा हुए। So we also can make a choice when we are in human form. और हम भी तभी चुनाव कर सकते हैं जब हम शरीर में पैदा होते हैं। But God knows before we are born, God knows what choice we will make. लेकिन प्रभु ये पहले से ही जानता है कि हम जन्म के बाद कौन सा फैसला लेंगे। And according to that, He has predestinated us. Hello? I can't hear you, brother. Hello? Brother Jaswinder? Can't hear you. Hello? Brother Jaswinder, we can't hear you. Hello? शायद फ्रीज हो गया भाई का नेट। हाँ नहीं, वो दोबारा लॉग इन करेंगे, वो मेरे ख्याल से वो इंटरनेट फेल हो गया था शायद उनका, आवाज बिल्कुल बंद हो गई, शायद दोबारा लॉग इन करें। वी विल वेट। अभी मुझे भाई जसविंदर से पता लगा कि उनका इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है और इंटरनेट लॉगिन नहीं हो रहा। तो जब तक वह इंटरनेट कनेक्ट के बाद नॉर्मल नहीं होता, तब तक हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और परमेश्वर के वचन की बातों को हम जारी रखेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम सभी लोग जो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो हम सभी जो है वो हिंदी भाषा समझते हैं। तो हम ट्रांसफर तो इसलिए करते हैं कि जो कोई बाद में भी उसको सुने तो वो अंग्रेजी में सुनना चाहे तो वो भी सुन सकता है। पर अभी फिलहाल जो हमारा हम जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, हम सब हिंदी समझ सकते हैं। तो जब तक भाई जसविंदर दोबारा लॉग इन नहीं करता, हम इस बात को हिंदी में जारी रखें। तो हम ये कह कि प्रभु, ये हमें बताया हमको कि प्रभु को यानी कि पिता को जानने के लिए
पुत्र को जानना जरूरी है। ये बात उसने यूहन्ना 8 के 23 और 24 में पहले उसने बताया कि वो कौन है और पिता कौन है। और जब हमारी इच्छा को जान लिया हमारे पैदा होने से पहले ही, उसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान। किसी भी चीज का ज्ञान पहले से हो जाना हमको नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं। पर परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो गॉड है, इसलिए उसको हर चीज का ज्ञान, उस चीज के अस्तित्व में, उस चीज के पैदा होने से पहले ही परमेश्वर को उस चीज का ज्ञान होता है। इसको बोलते हैं पूर्व ज्ञान या फोर नॉलेज अंग्रेजी में। और इसके द्वारा ही, इसके द्वारा परमेश्वर ये निश्चित करता है कि वो किसको चुनता है और किसको नहीं चुनता। परमेश्वर बगैर सोचे समझे ये निश्चय नहीं कर लेता, चलो ये बंदे को चुन लेता हूं और इसको छोड़ देता हूं। फिर तो परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, फिर तो वो हमारे साथ। परमेश्वर ये जानता है कि जिसका नाम वो अपनी लिस्ट में लिखेगा, वो बंदा कौन सी चॉइस करेगा। ये बात परमेश्वर को मालूम है। वो चॉइस जो है वो परमेश्वर ने मेरे लिए डिजाइन नहीं बना दिया कि मैं वो चॉइस करूं। ये तो मेरी अपनी इच्छा है, ये मेरी स्वेच्छा है, मेरी अपनी खुद की मर्जी है, जो परमेश्वर ने हर इंसान को दी है। आदम हवा से लेकर सबको ये इच्छा दी है, सबको ये मर्जी दी है कि जैसा चुनोगे वैसा फल पाओगे। तो हमने अगर चुना है बुरा इस संसार में, बुरा तो हमें चुनने की भी जरूरत नहीं हुई, हम तो पैदा ही बुरे में हुए। क्योंकि जो हमारे दादा पैदा हुए थे संसारिक बीज से, संसारिक रिश्तेदारियों से, वो तो पैदा ही गुनाह में हुए थे। और वो गुनाह कहाँ से आया? वो गुनाह वहां से आया, अदन की वाटिका से। वहां से जितने भी बच्चे पैदा हुए, हमारे बाप दादा के बाप दादा भी पैदा हुए, सब गुनाह हालत में, पाप की हालत में कंसीव होते हैं। दाऊद कहता है कि मेरी माँ जो थी, वो मैं पाप की हालत में अपनी माँ के गर्भ में पड़ा और मैं झूठ बोलता हुआ वापस आया। ये दाऊद का स्टेटमेंट है, ये दाऊद ने कहा। कितना बड़ा नबी था और कितना बड़ा किंग था, परमेश्वर का जन था। उसको भी ये रेवलेशन मिल गया था कि हम सब पापी हैं। और रोमियो 3:23 में भी लिखा हुआ है कि हम सब ने पाप किया है, हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पाप रहित है या बगैर पाप के। तब यीशु मसीह की ये जो आयत है यहाँ पर कि अगर तुम मुझे नहीं जानोगे कि मैं कौन हूं, तो तुम भी, तो तुम जिन पापों में पैदा हुए हो, जिन पापों में रह रहे हो, जो पाप तुम्हारे अंदर पहले से ही बैठा हुआ है, उसी में तुम मर जाओगे। इसका मतलब तुमको नजात नहीं मिलेगी, तुमको हमें नहीं मिलेगा। तो हमेशा का जीवन प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। यही ना जाने कि वो बेटा है, ये जाने कि वो बेटा है कौन। वो बेटा से आया, उसका वो जब किसी को पिता कह रहा है तो वो पिता कौन है, और जब पिता कह रहा है कि ये मेरा बेटा है तो वो बेटा कौन है। इस सारी चीज का प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे नेटवर्क जाने के पहले, कि मत्ती 16 बाब के अंदर में यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से पूछा कि बताओ नु। और उसके उसमें सोचने लगे, अपना अपना ज्ञान लगाने लगे, अपनी अपनी बुद्धि लगाने लगे, अपनी अपनी अकल लगाने लगे, अपनी पढ़ाई लिखाई लगाने लगे कि ये एलिया भी हो सकता है, ये नबी भी हो सकता है, ये अच्छा टीचर भी हो सकता है, ये विद्वान हो सकता है। पर असली बात उनको समझ में नहीं आ रही थी कि असल में है कौन यीशु। और ये एक बंदे के मुंह से ये बात निकली, सही, पतरस के मुंह से, कि यीशु जो है जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अब ये तो निकली एक मनुष्य के मुंह से, और वो मनुष्य भी उन 12 चेलों में से एक। पर यीशु मसीह ने उसको इमीडिएटली करेक्ट किया। यीशु मसीह ने उसको इमीडिएटली समझाया कि पतरस, ये मत समझ लेना कि ये तेरे पर्सनैलिटी का कमाल है, या तेरे शरीर का, या तेरे तेरे अंदर जो बुद्धि है, या जो जिस हांड मांस का तू बना हुआ है, या जो जो खून तेरे अंदर बह रहा है,
उसके द्वारा तेरे को ये प्रकाशन मिला, ये मत समझ लेना पत्र। यीशु इमीडिएटली उसको करेक्ट किया, उसके अंदर सुधार किया। उसने कहा जो तूने कहा है वो बिल्कुल सही है, पर ये समझ ले कि तुझे ये बताया किसने। तो उसने कहा कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है, यीशु ने कहा, उसने, उसके द्वारा तेरे को ये प्रकाशन मिला है। तो उसका पिता जो स्वर्ग में है वो कौन है? उसका पिता स्वर्ग में एक बुढ़ा आदमी नहीं है जो पिता है। उसका पिता जो स्वर्ग में है वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा का प्रकाशन पतरस को मिला। तो ये इस बात का ये मतलब है, जब यीशु कह रहा है मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझे बताया, इसका मतलब ये हुआ कि पवित्र आत्मा जो स्वर्ग में है, यानी कि सब जगह पर है, वो पवित्र आत्मा मेरा पिता है और उसने तुझे ये प्रकाशन दिया। तो यहाँ हमारे लिए शिक्षा क्या है, समझ क्या है, हमारे लिए क्या समझने की चीज है? कि पवित्र आत्मा ही वो पिता है, पवित्र आत्मा ही वो परमेश्वर है, जिसके द्वारा हमको प्रकाशन मिलता है और समझ आता है कि यीशु कौन है। का मतलब यीशु को समझने के लिए पवित्र आत्मा के प्रकाशन की आवश्यकता। जिसके पास पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है वो यीशु को समझ नहीं सकता, और जो यीशु को समझ नहीं सकता वो अपने पापों में मर जाएगा। तो अपने पापों से छुटकारा लेने के लिए हमें प्रभु यीशु को जानना जरूरी है। और प्रभु यीशु को कैसे जानेंगे? पिता के प्रकाशन के द्वारा जानेंगे। जब तक पिता का प्रकाशन नहीं मिलेगा तब तक हम यीशु को नहीं जानेंगे। तब तक ये हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सी गवाही है जो पिता ने बेटे के रूप में दी और बेटा अपने पिता की गवाही हमको दे रहा है। क्योंकि अनंत जीवन जो है केवल प्रभु यीशु मसीह, नजात केवल प्रभु यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह परमेश्वर का वो स्वरूप है जो शरीर में आ गया। तो नजात हमें दो लोगों से नहीं मिल रही कि एक पिता नजात दे रहा है और एक पुत्र नजात दे रहा है। पहले हमारी समझ यहाँ ठीक हो जानी चाहिए कि पिता और पुत्र दो नहीं है, वो एक ही है। इसलिए नजात देने वाला भी एक ही है। पिता ने अपने आप को शरीर के रूप में अपने बेटे के रूप में प्रकट किया, और तब वो बेटे के रूप में शरीर के रूप में अपना खून बहा करके हमारे लिए नजात का काम पूरा किया। ये समझ एक विश्वासी की, एक एक अंडरस्टैंडिंग क्रिश्चियन की ये समझ क्लियर होनी चाहिए। ये जो बाप बेटा का शब्द बार बार हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या बाप बेटा दो खुदा हैं? क्या हम त्रिएकता से निकल पर दो दो एकता में आ गए? दो पर्सनैलिटी मानना शुरू कर दिया कि तीन से घट के दो पे आ गए? ऐसा नहीं है। ये हमारे को समझ प्रकाशन से मिलती है कि पिता और पुत्र है कौन। पिता ही तो पुत्र के अंदर में है, और पिता कौन है? पवित्र आत्मा है। तो जब वो पुत्र के अंदर में, वही आत्मा पुत्र के अंदर में काम कर रहा है। और जब पुत्र उस पिता से बात करता है, उस आत्मा से बात करता है, तब वो उसको पिता कह के बुलाता है। ये हमारी हमारे लिए बहुत क्लियर होनी जरूरी है। हम एक आयत यहाँ पर और देखेंगे, और ये बात वही लोग समझ पाएंगे जो अनंत जीवन के लिए और अनंत जीवन के न्याय के लिए और अनंत जीवन की जीवन के लिए जो ठहराए गए हैं, वही लोग ये बात समझ पाएंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 13 बाब से एक आयत हम देखते हैं। हम जानते हैं कि हम यहूदी लोग नहीं हैं, और पहले जब ये कलाम शुरू हुआ था तो ये कलाम शुरू हुआ था यरूशलेम से, और पहली कलीसिया यरूशलेम से बनी थी। प्रेरितों के काम की किताब वहां से शुरू हुई थी, प्रेरितों के काम वहां से शुरू हुए थे। और फिर उसके बाद में जो यहूदी लोग थे, जिनके जिनके खानदानों में से निकल के यीशु मसीह शरीर में आया था, उन लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था कि ये नहीं मान के तैयार थे वो कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो लोग यही मानना चाहते थे, उनके दिमाग बंद थे, वो ब्लाइंड थे स्पिरिचुअली। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को वो नहीं समझ। इसलिए जब प्रेरितों के काम में कुछ समय के बाद देखते हैं कि जो प्रेरित लोग थे और पौलुस खास करके जब वहां पर लिखता है
तो वहां पर उन्होंने फिर जो अन्य जाति हम जैसे लोगों के बीच में प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार तो अन्य जातियों के लिए भी रखा था, और उसने उद्धार जो था यहूदियों के लिए भी रखा था। पर अन्य जाति जो है उसका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि यहूदियों के साथ परमेश्वर ने अपनी डीलिंग, अपना रुझान, अपना ध्यान, क्योंकि यहूदियों ने उसे रिजेक्ट किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम्हें एक चांस और दूंगा, और जब तुम्हें चांस दूंगा तो मुझे पता है तुम में से कौन कौन समझेगा। सारे नहीं समझेंगे, सारा इज़राइल सेव नहीं होगा, पर तुम में से 1,44,000 सेव होंगे, 12 गोत्रों में से 12,000। पर इस बीच में मैं क्या करने जा रहा हूं? परमेश्वर ने कहा कि ये जो अन्य जाति के लोग हैं, जो मूर्ति पूजा में घुसे हुए हैं, जिनको पता ही नहीं परमेश्वर होता कौन है, जो पत्थर को, सांप को, बच्चू को, गाय को, बैल को, सबको अपना भगवान मान लेते, जो कि जो कि परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को परमेश्वर मान रहे हैं, ये तो पाप में जी रहे हैं, मूर्ति पूजा में जी रहे हैं। तो इनको भी, इनके बीच में से भी परमेश्वर को पता था कि जब मैं इन पर अपने आप को प्रकट करूंगा तो इनमें से भी बहुतेरे निकल के आएंगे। और कौन निकल के आएंगे? जिनका नाम किताब जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। जिनको नाम किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्यों कर लिखा? क्योंकि परमेश्वर जानता है इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे उद्धार की योजना पर विश्वास करेंगे और मुझ पर विश्वास लाएंगे और मेरे हुक्मों पर चलेंगे और ये समझ जाएंगे प्रभु यीशु मसीह कौन। क्योंकि वो ढूंढेंगे, क्योंकि उनका मन अच्छा होगा, क्योंकि वो खटखटाएंगे, तो इसीलिए वो पाएंगे। तो जो खटखटाएगा ही नहीं, जो ढूंढेगा ही नहीं, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जिसके अंदर मन नहीं होगा प्रभु को पाने का, वो नहीं पाएगा। और जिसके यहाँ प्रभु उसको जरूर अपने आप को प्रकाशित करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेरितों के काम 13 बाब, और उसकी हम 48 आयत को पढ़ेंगे। 48 आयत के पहले हम देखते हैं प्रेरितों के काम 13 बाब और उसकी 48 आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पौलुस है, ये उसने बताया, क्योंकि हम ऊपर की आयतों में देखते हैं 45-44 में कि जब वो लोग सबत के दिन इकट्ठे हुए थे तो यहूदियों की जो भीड़ आई थी वो पौलुस के द्वारा बोली हुई बातों के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट चल रहे थे वो, कि ये क्या बातें कर रहे। तब उन्होंने कहा, 46 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, पॉल एंड बरनबास grew bold and said it was necessary that the word of God should be spoken to you first, but since you rejected it and judge yourself unworthy of everlasting life, behold we turn to Gentiles। यहाँ पौलुस और बरनबास जो थे, उन्होंने बड़े धीरज रख के और वीरता से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उन लोगों के सामने कि बेहतर तो ये था, प्लानिंग तो, योजना तो ये थी कि परमेश्वर का जो वचन है वो तुम्हारे लिए, जो वो परमेश्वर का जो वचन है वो तुम लोगों के लिए पहले प्रीच किया जाए। भाई कृष्णा, आप लाइन पर हैं तो आप वो वर्ष लगा सकते हैं, प्रेरितों के काम 13 बाब और उसकी 48 आयत, 46 से लेकर 48 आयत। आमीन। तो यहाँ पौलुस कह रहा है क्योंकि तुम लोगों ने परमेश्वर की योजना को रिजेक्ट कर दिया, धिक्कार दिया, इसलिए अब हम अपना रुख जो है वो अन्य जातियों की ओर करते हैं। अब हम अन्य जातियों की ओर मुड़ते हैं। और तब 47 आयत में लिखा है, पौलुस को बताया खुदा ने कि मैंने अन्य जातियों के लिए तेरे को एक चिराग या एक लैंप या एक बत्ती की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके द्वारा, ये जो मैसेज तू प्रीच करेगा, इसके द्वारा संसार के कोने कोने में उद्धार का कार्य होगा। और जब ये उद्धार का कार्य होगा तो 48 आयत में वो बता रहा है, नाउ व्हेन द जेंटाइल्स हर्ड दिस दे वर ग्लैड एंड ग्लोरिफाइड द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। अब यहाँ पर 48 आयत में कि जब उसने इस प्रचार को
मूर्ति पूजकों, अनन्य जातियों के सामने परमेश्वर के जो योजना थी, जब इसका प्रचार किया, तब जो अन्य जाति थे उन्होंने, जब वो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की इस वचन को सुनने के बाद। और उसके देखिए, उसके बाकी हिस्से में, 48 आयत के बाकी हिस्से में क्या लिखा है? एज मैनी एज हैड बीन अपॉइंटेड टू इटर्नल लाइफ बिलीव्ड। उनमें से जितने जो थे, जो इस बात के लिए नियुक्त थे, जो परमेश्वर उनको जानता था कि ये ऐसी चॉइस करेगा और ये ऐसा आज्ञाकारी बनेगा, फेथफुल बनेगा, विश्वासी बनेगा, तो मैं इसे हमेशा का जीवन दूंगा। तब उनमें से जितनों की नियुक्ति हमेशा के जीवन के लिए थी, उन्होंने विश्वास किया। तो विश्वास कौन करता है? जो हमेशा के जीवन का अधिकारी होता है। जो विश्वास ही नहीं करता, वो अनंत जीवन कैसे पाएगा? इसलिए यहाँ पर एक शिक्षा और यह है कि विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल के अंदर इब्रानियों के 11 बाब के अंदर हम देखते हैं, जहाँ पर पौलुस कहता है, इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि विश्वासियों को इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए, बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसको खुश करना असंभव है। वी कैनॉट प्लीज गॉड विदाउट ट्रू फेथ एंड विदाउट प्रॉपर बिलीफ। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, ये बेटा जिसको हम कहते हैं, ये है कौन? ये बेटा वही आई एम है, जो शरीर के रूप में आया। ये समझ हमारी बहुत जरूरी है खुदनी। हम इससे पहले कि अब हम खत्म करें, हम एक दो आयतें यहाँ और पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना, उसके 5वें अध्याय में हम जाएंगे। पहला यूहन्ना, ये जो स्क्रिप्चर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो अभी हमने यूहन्ना 8 में पढ़ा और मत्ती 16 से पढ़ा, ये स्क्रिप्चर वही है, और प्रेरितों के काम से पढ़ा। ये जो अब पहला यूहन्ना और उसका 5वां बाब पढ़ने जा रहे हैं, ये भी वही स्क्रिप्चर है। क्योंकि सारा का सारा स्क्रिप्चर, सारा का सारा वचन जो है परमेश्वर का, वो आपस में मेल खाता है, वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसका सोर्स एक ही है, उसका लिखवाने वाले, उसकी लिखवाने वाली आत्मा एक ही है, वो परमेश्वर है। वो जो हमारा पिता परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये पूरा वचन लिखवाया गया है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। तो अब हम इसको कहीं से भी पढ़ते हैं, तो इसका जो भाव है, इसकी जो फीलिंग है, वो सेम होती है। अब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय, उसकी हम कुछ आयतें पढ़ेंगे, देखते हैं कि वहां पर यूहन्ना को क्या प्रकाशन दिया परमेश्वर ने, और वो क्या लिखता है। पहला यूहन्ना, उसका 5वां अध्याय, और उसकी अब हम जो आयत पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे यहाँ से 9वीं आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 और 9 को पढ़ेंगे, फिर आगे एक दो आयतें और पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना लिखा है, इफ वी रिसीव द विटनेस ऑफ men, द विटनेस ऑफ गॉड इज ग्रेटर। दिस इज द विटनेस ऑफ गॉड विच दैट विच ही हैज टेस्टिफाइड ऑफ हिज सन। यहाँ देखिए, ये यूहन्ना 8 की जो आयतें पढ़ी है हमने, उससे ये आयत मेल खा रही है कि जो पिता, हम लोगों की गवाही, लोगों के विटनेस को तो बिलीव करते हैं, पर जो परमेश्वर की गवाही है, उसका जो विटनेस है, वो और बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि, और वो विटनेस है क्या? वो क्या गवाही है? जो कि परमेश्वर अपने बेटे के रूप में जो गवाही देता है, वो परमेश्वर की गवाही है। यानी कि परमेश्वर अपने बेटे की गवाही स्वयं दे रहा है। यही बात अभी हमने पहले पढ़ी थी वहां, यूहन्ना 17 में भी पढ़ी। और उसके बाद 10वीं आयत में कह रहा है, he who believes in the son of God has the witness in himself। अब अगर जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, यानी कि परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, ये उस गवाही को रिसीव करता है जो परमेश्वर की गवाही है। यहाँ पर ये बात जुड़ जाती है हरकत से। और जो इस बात को बिलीव नहीं करता, वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। ये 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की गवाही पर विश्वास नहीं किया। कौन सी गवाही पर? कि जो है वो परमेश्वर का पुत्र है। ये वही गवाही थी जो मत्ती 16 में पतरस के ऊपर प्रकाशित हुई।
कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु। ये सारी गवाही हम सब के लिए है। ये सारी बातें हम सब के लिए जुड़ती हैं आकर के। और अगर हमारी गवाही भी आज यही बन जाती है तो निश्चय ही हम उस उद्धार के भागी हैं। वो उद्धार हमारे लिए, वो अनंत जीवन हमारे लिए। क्योंकि वो कहता है 11वीं आयत में, देखिए बात का निचोड़ है, दिस इज द टेस्टिमनी दैट गॉड हैज गिवन अस इटर्नल लाइफ एंड दिस लाइफ इज इन हिज सन। कौन सी गवाही को हमने विश्वास करना है? कि परमेश्वर ने हमें हमेशा का जीवन दिया है, और वो जीवन है कहाँ? एंड दैट लाइफ इज इन हिज सन। वो अनंत जीवन, वो उद्धार। उद्धार और अनंत जीवन एक ही बात। हम उसे उद्धार जीवन कह रहे हैं। जिसका उद्धार हुआ वही अनंत जीवन में जाएगा, और जिसके पास अनंत जीवन है वो उद्धार पाया होगा। ये दोनों बातें एक ही हैं, पर इनको जोड़ के हमें समझना होता है। तो जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ है। 12वीं आयत में कहता है, ही हु हैज द सन हैज इटर्नल लाइफ, ही हु डज नॉट हैव द सन डज नॉट हैव द लाइफ। जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। क्योंकि जिसके पास बेटा ही नहीं है उसके पास उद्धार भी नहीं है। और जब उद्धार नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है। जब अनंत जीवन नहीं है तो परमेश्वर से कोई मेल नहीं है, परमेश्वर की कोई संतान नहीं बनेगा। वो निश्चय ही अपने पाप में मर जाएगा, जैसा हमने अभी उस आयत को पढ़ा, यूहन्ना 8:24 को। तो हम सबके लिए ये आज के लिए लेसन है। ये एक अच्छी आयत जो प्रभु ने पहले से ही हमारे लिए निर्धारित करके भाई के मुंह से निकलवा दी थी। और उसी आयत के ऊपर हमारा आज का सारा हमारा लेसन, हमारी सारी शिक्षा एक उसी सार के ऊपर, उसी भाव के ऊपर परमेश्वर ने निर्धारित कर दी। तो परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर हम सबको बहुत ब्लेस करे कि ये बातें जो हमने सुनी उसके वचन से, इन बातों को सिर्फ केवल हम सुन के भूल ना जाएं, या सुन के थोड़ी देर याद रखें फिर भूल जाएं। नहीं, ये बात हमारे जीवन में गवाही बन जाए। जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र की गवाही दी और पुत्र ने पिता की गवाही दी, इस प्रकार से हम भी आज उसके गवाह हैं इस संसार के अंदर। हमारा क्या काम है? यीशु ने कहा जी उठने के बाद सारा अधिकार मुझे दिया गया, मत्ती 28 और 18-19 में। उसने कहा अब जाओ और सारे संसार में जाके इन बातों का प्रचार करो, इन बातों को बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और जा करके उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दो, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। और उन्हें चेला बनाओ, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो अगर आज हम जो जिंदा हैं इस धरती पर हैं, तो हमारी क्या गवाही होनी चाहिए? हम भी वही गवाही दें जैसे उन चेलों की गवाही। हमारी गवाही क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार उसी के नाम में है। जिसके पास परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन है कि वो परमेश्वर की ओर से आया, वो अपने गुनाहों में नहीं मरेगा, और वो अपने गुनाहों से छुटकारा पालेगा। फिर वो वही काम करेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाए हैं। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। उसकी आज्ञाएं कहाँ हैं? कि आज्ञाएं उसके वचन में हैं। इसलिए हम उसके वचन में बने रहें, और वचन के अलावा हम किसी और चीज को प्रेफर ना करें, हम किसी और चीज पे मन ना लगाएं। और जब हम पवित्र आत्मा पे डिपेंड करते हैं, पवित्र आत्मा की ओर ताकते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें बता देता है कि यहाँ पर ये आदमी जो वचन से प्रीच कर रहा है, ये बात वचन से बाहर है, खबरदार हो जाओ। तो ये बात हमें वो आदमी नहीं बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा। और किसी के द्वारा, पवित्र आत्मा किसी के द्वारा बोल के भी बताएगा। पवित्र आत्मा अपने जनों के अंदर से होकर बात करता है, जैसे कि पवित्र आत्मा अपने बेटे के अंदर से होकर बात करता था जिसका नाम यीशु था। तो अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हमारे थ्रू होकर के भी पवित्र आत्मा बात करेगा। तब हम उसकी गवाही देंगे, और तब हम अपने आप को ही नहीं बस दूसरों को भी समझा पाएंगे, जिससे कि परमेश्वर उनका भी उद्धार कर सके। तो इन बातों के साथ हमारी आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं। और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि उसने हमको ये शिक्षा दी और ये सबक दिया। और अब हम इस मीटिंग को के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को प्रार्थना के साथ खत्म करते हैं। क्योंकि अभी तक भी शायद भाई जसविंदर का नेट नहीं लगा, उनका मुझे अलग से मैसेज आ गया।
और अभी उनको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो एनीवे खैर हमने अपनी मीटिंग को जारी रखा, और जो हमारा पाठ था, जो शिक्षा थी प्रभु ने रखी थी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हमको मिली है। हम सबको उसका बहुत सारा अ, वरदान और ब्लेसिंग मिलेगी। अब मुझे नहीं पता है कि वो कितना पोर्शन उसका भाई ने रिकॉर्ड किया है। जो नहीं किया होगा कोई बात नहीं है, हम सब ने सुन लिया है, हम दूसरों से भी शेयर करते हैं। और गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई सुरेंद्र के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। ओवर टू ब्रदर सुरेंद्र। गॉड ब्लेस प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा का धन्यवाद करें कि उसने हमसे बातें की, क्योंकि उसका वादा है कि जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हो मैं वहां हाजिर होता हूँ। हम गिनती में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने अपने विचारों में हमारे नामों को रखा है। इस कारण वो अपने पास बुलाता है और हमें समय पर समय दिए जा रहा, ताकि हम उसकी शकल सूरत और समानता में बन जाए, उसकी ब्राइड बन जाए, उसकी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस बन जाए, ताकि उसकी दुल्हन बन जाए प्रभु, ताकि जहां तू रहे हम तेरे साथ बादलों पर उठाए जा सके। ये हमारी कोई खूबी और लियाकत के द्वारा नहीं है प्रभु जी, ये तेरे उस अनुग्रह के द्वारा हुआ है प्रभु, जो तूने हम पर किया है प्रभु जी। हमारे आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में हम तेरे पास आते हैं। जो तूने वो नाम हमें दिया है प्रभु, जिस नाम में हमारी नजात पाई जाती है प्रभु, उस नाम को तूने हमारे लिए रखा है प्यारे। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते। हम समझ गए प्रभु, तू वो ही है जिसने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तू वो ही है जो अब्राहम से मिलने मलकिसिदीक के रूप में आया, जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना माँ है ना बाप है, ना जिसके दिनों का शुरू है ना अंत है। प्यारे बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये अच्छी समझ के लिए प्यारे पिता जो तूने हमें दी है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि समझ का देने वाला तू है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हमारी तुझसे प्रार्थना है प्यारे पिता, तू प्यारे पिता रैप्चरिंग फेथ अपने बच्चों को प्रदान कर प्रभु। इस सौभाग्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आज शाम तूने अपने बच्चों से बातें की है प्रभु। प्यारे पिता, इन बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम एक अंश और तेरी ओर बढ़ सके प्यारे पिता। जबकि प्यारे बापा आसमानी, हम सब जानते, हम सभी नहीं प्रभु, दुनिया जानती है प्रभु कि हम अंत के भी अंत समय में आ पहुंचे हैं। लेकिन प्यारे बापा आसमानी, तो जो तेरे चुने हुए सेलेक्टेड और इलेक्टेड है प्रभु, उनसे तू प्राइवेटली बातें करता है प्रभु, जैसे अपने अपोस्टल से तू प्रभु जी एकांत में बातें करता था। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है प्यारे बापा आसमानी आज की जूम मीटिंग के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो तूने हर एक भाई बहन एवं बच्चों को, बूढ़े को, जवान को प्रभु इकट्ठा होने का फजल प्रदान किया। प्यारे बापा आसमानी, यहाँ कोई बहुत बड़े रिवलेशन नहीं प्रभु, लेकिन तेरे कलाम की वो छोटी सी छोटी बातें प्रभु जो तू हमें बता देता है प्यारे पिता, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि तेरा धन्यवाद करते। प्यारे बापा आसमानी, हमारे अंदर ना कोई खूबी है ना कोई लियाकत है प्रभु, फिर भी तू अच्छा है और हमसे प्यार करता है प्रभु। तेरे उस प्यार के हम नतमस्तक हो जाते हैं प्रभु, सीधा करते हैं प्यारे पिता, जिनको लेने के लिए तू आने वाला है प्यारे पिता। प्यारे बापा आसमानी, इस जूम मीटिंग पर प्रभु जी अपने सेवकों को तूने इस्तेमाल किया प्रभु जी। प्यारे पिता, ट्रांसलेशन के कार्य में तूने अनुग्रह प्रदान किया। भाई जसविंदर को बड़ी आशीष थे प्यारे प्रभु, उसके परिवार खानदान को बड़ी आशीष थे। भाई मैनुअल को प्रभु जी तूने हमारी अगुवाई के लिए रखा है, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। उस भाई को बुजुर्गी में प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, तेरी मर्जी उसके जीवन में पूरी हो प्यारे पिता। जो भी भाई हमसे शेयर करता है प्रभु, जो तेरे साथ उसका एक्सपीरियंस है प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय में उत्तेजना उठ जाती है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, इसमें प्यारे प्यारे भाइयों के लिए प्रभु जो तूने प्रभु जी हमारे लिए रखा है, ताकि अपने कंफर्ट जोन में प्रभु, अपने अपने घरों में प्यारे पिता हम तेरे सामने एकत्रित हो सके प्यारे पिता। और तू जो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है प्रभु, तूने हर एक के हृदय से बातचीत की प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज का बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह
हमारे लिए लाभ का कारण हो सके प्रभु जी। प्यारे बाप आसमानी, हम जैसे भी हैं, हम तेरे सामने हाजिर है प्रभु यीशु मसीह, और बेहतर मसीह होने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें, हमारे समझों को दुरुस्त करें प्यारे प्रभु, अपने वचन को, लिखित वचन को प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन कर दे प्यारे पिता। तू हमसे बातचीत कर प्यारे बाप आसमानी। ये किताब दुनिया की और किताबों के समान नहीं है प्रभु, क्योंकि तेरा कलाम हमें सिखाता है कि आदि में वचन, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर। प्रभु तू है जो हमसे बातचीत करता है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, आज जो भी प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख रखी गई है प्यारे पिता, जो भी गा बजा कर अपने होठों का बलिदान तेरे सामने रखा गया, तुझे ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता। बाप आसमानी, मैं अपने प्यारे भाई बहनों के साथ तेरे चरणों में हाजिर हूँ प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, हम में जो कमजोर है, लाचार है, बीमार है, यदि किसी को बर्डन में पाया जाता है प्रभु, तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह वो बर्डन जाता रहे प्रभु, उसकी हर परेशानी और घटी जाती रहे प्यारे पिता, ताकि बड़ी आजादी के साथ प्रभु यीशु मसीह दुनियादारी के तमाम कार्य को लगाम लगाते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए तैयार हो सके प्यारे पिता। क्योंकि अब समय नहीं है प्रभु, तो बहुत जल्दी आने वाला है प्यारे। प्यारे बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारे हृदय को उसकाता है प्रभु। जैसे प्यारे बाप आसमानी तूने उन चेलों से कहा प्रभु, हमारी समझ में तो कुछ आता नहीं, लेकिन प्यारे पिता हमें इतना जरूर पता चल गया कि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, हम इस दुनिया में कहाँ जाए प्यारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमसे वादा किया है कि मैं आऊंगा फिर तुम्हें ले जाऊंगा। प्यारे बाप आसमानी, आप हमारी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह, उस योग्यता को हमें प्रदान करे प्रभु जिसको तू चाहता है प्यारे पिता। तूने कहा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्यारे बाप आसमानी, तूने प्रभु जी, तूने यूहन्ना 3 में कहा था प्रभु जी, उस फरीसी को प्यारे पिता नतनेल को प्रभु जी, कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू केवल उसका शब्द सुनता है प्यारे पिता। बाप आसमानी, हम भी वैसे ही है प्यारे प्रभु, हम चाहकर भी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन तू हमारे हृदयों में आ और वास कर प्रभु। जैसा तूने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ होऊंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होऊंगा प्रभु, तू हमारे अंदर आ और हम अपना कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी लगाम को ताम प्रभु, जैसा तुझे भाए तुम्हें चला प्यारे प्रभु। आज की तेरी इस उपस्थिति के लिए प्रभु, जो मीटिंग पे तुझे जाहिर की प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तमाम डिस्टर्बेंस के बावजूद भी प्यारे प्रभु यीशु मसीह तूने हमसे बातें चीतें की प्रभु यीशु मसीह, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। जब तक हम फिर द्वारा मिलते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे बूढ़े जवान को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी रक्षा और हिफाजत करें, अपने लहू की सुरक्षा में बनाकर रखें प्रभु यीशु मसीह। आने वाला सप्ताह हमें नहीं पता है हमारे लिए कैसा है प्रभु, लेकिन तू जानता है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे बाड़े में रहना चाहते हैं प्रभु, इसका रखवाला तू है प्यारे पिता। बाप आसमानी, सहायता मदद करे प्यारे प्रभु, अपनी आत्मा का दान दे प्यारे पिता। आप आसमानी, हमारी सहायता मदद करे प्रभु। हर एक बच्चे को तेरे जुड़ा हाथों में सौंपते प्रभु, इस जूम मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। अब तक तूने चलाई है प्रभु यीशु मसीह, ये तेरा अनुग्रह ही है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम तेरे बच्चे जो अंगारे हैं प्रभु इस जूम मीटिंग पे इकट्ठा हो जाते हैं प्यारे पिता, ताकि हम एक दूसरे से मिलकर चार्ज हो जाते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तेरे कलाम की बातें जब शेयर की जाती है, हमारे हृदय उत्तेजित हो जाते हैं प्यारे पिता, क्योंकि तू हमसे बातें चीतें करता है प्यारे पिता। तेरी इस डीली के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आप आसमानी, आज के सुंदर दिन के लिए तेरा धन्यवाद। अपने प्यारे भाई भाई जसविंदर को, भाई इमैनुअल को प्रभु, जो हमें लीड और गाइड करते हैं, अगुवाई करते हैं प्रभु, बहुतायत से आशीष दे प्यारे पिता। और हर एक उपस्थित भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह वो आशीष दे प्यारे पिता, उनके परिवार और उनके खानदानों को बड़ी आशीष दे। जो किसी कारणवश, किसी भी परेशानी के वश कोई नहीं आ पाया हमारे बीच में प्रभु, उसका आशीष का भाग से दिया जाए प्यारे पिता, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह और ज्यादा से ज्यादा प्रभु हम तेरे इस गले में शामिल हो सके प्यारे पिता, और तेरी मीठी और मधुर आवाज को सुनने वाले हो सके प्यारे, ताकि उस रैप्चर को प्राप्त करने वाले हो सके पिता, जिसको लेने के लिए तू आने वाला है। बाप आसमानी, सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हुए, तेरा रहम मांगते हुए प्रभु जी, अपने आके तेरी ओर उठाते हुए प्रभु, तेरी ओर निहारते हुए ये विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिटे जलन नाम में होकर मांग ले, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो, सारा आदर सम्मान उसको मिले। थैंक यू ब्रदर सुरेंद्र।
गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और प्रभु की इच्छा हो तो अगले हफ्ते हम फिर दोबारा से यहाँ पर जुड़ेंगे। भाई के मुझे बार बार मैसेज आए भाई जसविंदर के, क्योंकि इंटरनेट उनका नहीं ठीक हो पाया, पर वो प्रभु जानता है, प्रभु हर चीज प्रभु के कंट्रोल में है। तो हम प्रभु का फिर भी धन्यवाद करते हैं कि हम हमारी मीटिंग हम जारी रख सके, और वचन की बातों को सीख सके, और एक दूसरे को एनकरेज कर सके, और प्रभु के नाम को सारी इज्जत और जलाल मिले। हम सब एक दूसरे को अपग्रेड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स। गॉड ब्लेस गॉड यू ब्लेस यू भाई इमानुएल जी, गॉड ब्लेस यू। Bless you, brother. God bless you. God bless भाई you. आपके जोशुआ जी, आप गॉड सबों को ब्लेस बड़ी यू। आशीष देता भाई हूँ। लेखराज जी, जय मसीह की, God bless you. भाई लेखराज जी, जय मसीह की, भाई गॉड लेखराज, ब्लेस यू God भाई bless जी। you. Praise the Lord. भाई राकेश जी, जय मसीह की, God bless you. भाई की सभी ठीक हो भाई जी, तुसी भाई लेखराज जी ठीक हो? Brother भाई 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 राकेश जी, रकेश तुसी कुमार जी, ठीक जय हो? मसीह की, गॉड ब्लेस भाई यू। आपके जोशुआ प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद आपको God बहुत bless आशीष you, दे। brother. God bless you. प्रभु भाई बहुत राकेश बरकत जी देवे। प्रेज द लॉर्ड। भाई भाई लेखराज राकेश जी जी, जय मसीह गॉड ब्लेस की। यू। सिस्टर जय मसीह की संगीता भाई जय जी। मसीह की। संगीता, जय मसीह की, God bless you. मार्केट से वापस आ गई। हाँ टेरेस पे आ गई हूँ। खुदा हाँ बाप जी, के God bless you, sister Rebecca. Sister, God bless देखिए मैं you. ऊपर रह रही हूँ। Sister Rebecca, God bless you. God bless you, brother. God bless you all, brother and गॉड sister. ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। God bless you. God God bless bless you. you all brothers प्रभु and सबको sisters. बहुत आशीष दे। आमीन Thank you, Brother Kishan, Emmanuel. God bless you. Sister Mary, आमीन। praise the गॉड ब्लेस Lord. यू। God bless you, sister. Bhai Karan ji, God bless you. सिस्टर Bhai संगीता Anand जी, Joshua, गॉड God ब्लेस यू। bless you. God bless you, brother. God God आमीन। bless you. रेबेका Rajinder जी, ji, God गॉड bless ब्लेस यू। you. God bless you too, brother Krishna. God आमीन। bless you. Brother Jaswinder. भाई सुरेंद्र जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू भाई जी। जय मसीह की भाई, गॉड Rajinder ब्लेस ji, यू। जय God मसीह bless की, you पूरे too, परिवार को भाई जय Sister राजेंद्र मसीह Mary. की। मसीह जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू God भाई जी। bless you, brother Surendra. God bless you, आके जोशा जी, जय मसीह की, सारे परिवार को now. God प्रेज द bless लॉर्ड, you. भाई प्रेज द लॉर्ड। सभी गॉड भाई ब्लेस बहनों को प्रेज द वे लॉर्ड। प्रभु ਦਾ काम जय प्रभु मसीह ਦਾ की काम भाई, लुधियाने जो ਚ अपना ਤਰੱਕੀ भाई ਕਰ प्रेज ਰਿਹਾ द है। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ गॉड ਬਹੁਤ ब्लेस यू। ਪ੍ਰभु आशीष ਦੇਵੇ आमीन 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 कलीसिया ਦੀ आमीन। ग्रोथ ਦੇ Very ਵਾਸਤੇ। good prayer, Brother ਤੇ Surinder, by heart and the ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ spirit. ਕਲੀਸਿया ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। आमीन भाई Recording stopped. आमीन। भाई पेड़े खाते जाएंगे, मुश्किल उठाते जाएंगे, कठिनाई देते जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारा लीडर है। हमने तो उसको फॉलो करना। कहता मेरी तरफ देखते रहो तो समुद्र में डूबोगे नहीं। अच्छा ब्रदर, हाँ जी, प्रभु के लोग क्या गुस्सा नहीं कर सकते हैं? गुस्सा कर सकते हैं, पर शाम ढलने तक वो गुस्सा जारी ना रहे। अच्छा, वो गुस्सा सुलह में हो जाए। बाइबल में ही, बाइबल के हर सवाल का जवाब बाइबल में है। गुस्सा तो यीशु को भी आया था। उसने हंटर बना करके वो हैकल के अंदर से गाय भैंस वालों को हंटर मार मार के भगा दिया था। जी पर उसी ने, उसके अंदर इतना प्रेम भी था कि उन्हीं गुनाहगारों की खातिर उसने जान भी दी। जी तो एक मसीह का जो कैरेक्टर है वो ये है कि हम सांसारिक रूप में गुस्सा भी कर सकते हैं, हम थकते भी हैं, हम सोते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम गाते भी हैं, आंसू भी निकलता है, गुस्सा भी आता है, झिड़कते भी है, पर उसका जो अंत रिजल्ट है वो पाप में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जी हमारा गुस्सा पाप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा गुस्सा अंत में प्रेम में परिवर्तन होना चाहिए। कि आज तूने मुझे तंग किया, आज तूने मुझे परेशान किया, कोई बात नहीं, गुस्सा मुझे उस टाइम आया था, पर अभी मैं तेरे को बोल रहा हूं, ये बोल रही हूं कि प्रभु हम सबसे प्रेम करता है। प्रभु के प्रेम में सुलह से रहो, और इमीडिएटली पवित्र आत्मा टेक ओवर कर लेगा और अच्छे से अच्छे गलत बंदे को भी घुमा देगा उसमें। जी पवित्र आत्मा वेट करता है कि हम उसको कब इनवाइट करें।
कहता तुम मुझे इनवाइट तो करो, तुम मुझे इनवाइट ही नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप ही अपने झगड़े जो सुधारने के चक्कर में पड़े हो, तो फिर सुधारते रहो, नहीं सुधार पाओगे और परेशान हो जाओगे और दलदल में घुसते जाओगे। दलदल से निकलने का तरीका उसी टाइम ऊंची, अब कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी चीज हो रही है जो हम बड़े परेशान हो चुके हैं, तो कलाम के अंदर जबूर लिखे हुए हैं बड़े बड़े। ये मैं अक्सर कई भाई बहनों को पहले भी बताता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। जो जबूर है 91, जबूर 23, जबूर 120, जबूर 121, ऊंची ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दो, ऊंची ऊंची आवाज। वो जो शैतान की ताकतें सुन रही है ना, उनको ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। ये भाई देखो, इस चीज की गवाही भाई जोशुआ और भाई राकेश के पास है, भाई लेखराज के पास है। जब वो गलत गलत आत्माएं आती हैं ना, तंग करती हैं वहां के आके, हम जी ये जी करते हैं, तो ये ऊंची जी आवाज में उससे बात करते हैं, जी बिल्कुल जी आवाज में कलाम की बात करते हैं, ऊंची आवाज में यीशु के नाम में उनको झिड़कते हैं। जी बिल्कुल। पतरस यूहन्ना आमीन और भी यही किया करते हैं। हमने अपने मन में नहीं झिड़कना, जोर से मुंह से ऊंची आवाज में झिड़कना है, और उस आदमी को नहीं झिड़कना, उस आत्मा को झिड़कना है। हम्म जैसे हमसे कोई किसी ने कोई मोहन नाम के आदमी ने कोई बदतमीजी कर दी, तो हमें उससे ये नहीं कहना कि मोहन तू बदतमीज है। हम उसके अंदर जो आत्मा घुसी हुई है ना, हम उस आत्मा को डांट लगाते हैं कि तू जो सही इस बच्चे के अंदर बोल रही है, हम तेरे को यीशु के नाम में डांट लगा रहे हैं। कुछ जब यीशु मसीह को पतरस ने घमंड में आकर ये कह दिया था, यीशु ने कहा अब तो मैं अपनी राह पे जा रहा हूं, अब मुझे जाना जरूरी है, तो पतरस ने सोचा अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी बड़ी तारीफ करी है गुरु जी ने, ये तो सब पता है, किसी को भी नहीं पता। हाँ जी, पतरस को तो रेवलेशन मिल गया, तो पतरस भूल गया। तो पतरस ने कहा नहीं नहीं गुरु जी, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम नहीं जा सकते वहां, वहां वहां क्यों जाओगे तुम। तो यीशु को पता चल गया अब इसके अंदर शैतान घुस गया। तो यीशु ने उसे ये नहीं बोला ये पतरस तू चुप हो जा, यीशु ने बोला ये शैतान तू चुप हो जा। जो अंदर घुसी हुई चीज है वो डेमन है, वो दुष्ट आत्मा है। हमें दुष्ट आत्मा को डांटना है, हमें दुष्ट आत्मा को धिक्कारना है, हमें दुष्ट आत्मा को कमांड देनी है। हम उस बंदे को कुछ नहीं कह रहे, वो बंदा तो बेचारा उस आत्मा के वश में आ चुका है। इसीलिए जो बीमारी आती है या दुष्ट आत्मा आती है, जिसे हम बोलते हैं कि इसके ऊपर ये इफेक्ट हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया, वो बंदे को तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। वो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर जो शैतान ने लटका रखी है ना, हवाओं में इधर उधर घुस घुस के लोगों को तंग करता है। और वहां पर तो यीशु ने तो वो दुष्ट आत्माएं निकाली थी, वो जानवरों में घुस गई थी, और जानवर भी परेशान हो गए, यार ये क्या हो गया। वो भी कहता जी साढ़े अंदर क्यों भेज देती है। उन्होंने कहा नहीं जाओ तुम जाके उन मर जाओ समुद्र दे अंदर जाओ। खुदा ऐसे काम करता, इसीलिए हमें हमें आत्मा, कलाम में लिखा है एफिसियों 6 बाब के अंदर, हमारा हार्ट और मांस के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। अगर मेरा बच्चा या मेरा नौकर या मेरा मालिक या मेरा आदमी या मेरी औरत मुझसे बदतमीजी कर रही है, तो मेरी उससे दुश्मनी नहीं है, मेरी हांड मांस से दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी तो उन शैतान की ताकतों से है जो उसको तंग कर रही हैं। मेरी दुश्मनी उस इंसान से नहीं है, उस बीमारी से है, उस बदरू से है, उस दुष्ट आत्मा से है जिसके वश में वो आ चुका है। और अगर वो मेरे को भी तंग करे आकर के, तो फिर मैं अपने आप से भी दुश्मनी नहीं है मेरी, मेरी उस दुष्ट आत्मा से दुश्मनी। तो इससे दुश्मनी भागेगी कैसे? वचन के द्वारा, वचन की तलवार से, वचन के हेलमेट से, वचन की ढाल से। हर चीज का इलाज क्या है? वचन। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं हिला सकती सिस्टर। कोई बीमारी से मर जाएंगे, क्या होगा? मर जाएंगे ना, क्या होगा? यीशु मसीह आवाज देगा तो जिंदा हो जाएंगे। 4 दिन के सड़े मुर्दे को उसने जिला दिया था एक आवाज में, ये दिखाने के लिए कि उसके अंदर पावर है, मरी हुई लाश को वो जिला सकता है। वो उसने दिखाया था, उसने एक ट्रेलर दिखाया था, स्मॉल डोज दिया था। उसने कहा था अनंत जीवन
और पुनरुत्थान तो मैं हूं। क्या कह रही है कि मेरा भाई जो है पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा? वो देख अभी जी उठेगा। उसने अपनी ताकत दिखाई थी। पर अब जब वो पुनरुत्थान कराएगा ना रैप्चर के अंदर, जो उसमें सो गए हैं उनका पुनरुत्थान हमेशा के लिए होगा। लाजर तो दोबारा मर गया ना। जी लाजर का मरना जो था वो रिजरेक्शन नहीं था। लाजर का जो जिलाना था वो एक मौजजा था, मौजूद जो यीशु ने दिखाया मेरे अंदर पावर है। पर वही लाजर जो मर गया था, वो अगर ईमानदार लाजर था तो वो रैप्चर के दिन वो भी जी उठेगा, है ना। और वो लाजर भी जी उठेगा जो गरीब लाजर था लूका 16 बाब में। और अमीर आदमी जी नहीं उठेगा। अमीर आदमी जी उठेगा उस दिन जिस दिन आखिरी न्याय होगा सफेद तख्त पे, जी व्हाइट थ्रोन पे। क्योंकि व्हाइट थ्रोन का जो जजमेंट है वो अनबिलीवर्स के लिए है। और हमारा जो जजमेंट है, जब लिखा है ना हम सबको उसकी जजमेंट सीट के सामने खड़ा होना है, जो बिलीवर्स हैं, वो कौन सी जजमेंट सीट? वो हमारे अच्छे और बुरे का न्याय नहीं करेगा, वो तो हमारी ताजपोशी करेगा। वो कहेगा इसको गोल्ड दूं कि सिल्वर दूं कि ब्रॉन्ज दूं कि क्या दूं, इसको कौन सा मुकुट दूं। वो भी तो जजमेंट होता है ना। हमारा वो जजमेंट होगा। पर उन लोगों का वो जजमेंट होगा, वो आग की झील का जजमेंट होगा। तो आप फिक्र नहीं किया करो। और आपको भी मैंने बताया, जब कभी कोई तंगी परेशानी होती है आप फोन कर लिया करो। हमारे इतने सारे भाई आपके आसपास हैं। जी पंजाब में भी सब आपके भाई है, जी बिल्कुल। तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अब प्रभु ने हमारे भाई को तो बुला लिया अपने पास, उसकी दौड़ पूरी हो गई। जी ठीक है। तो अब बात यह है कि उसने तो जितना प्रभु ने उसको रखा उसने कर दिया। जी बिल्कुल। पर जो काम वो कर गया है उसमें भी तो एक फ्रूट है ना। जो प्रभु की सेवा कर गया है उसमें फल है ना, वचन का फल। वो जी हम और बिल्कुल। आप है। तो अब हमने आगे उस काम को चलाना है ना आगे। ये थोड़ी हो गया कि ब्रैनम चला गया तो मिनिस्ट्री बंद हो गई, ब्रदर फ्रैंक चला गया तो मिनिस्ट्री बंद हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। वो तो चलता रहेगा। प्रभु की मिनिस्ट्री, प्रभु की सेवा प्रभु के आने तक जारी है। इसीलिए तो हम हताश नहीं होते, इसीलिए हम दुखी नहीं होते, इसीलिए हम रोते नहीं। जी रोना आता है, दुख होता है, हम संसारिक हैं। पर हमको उसको फिर बाद में प्रभु हमारे को उसके ऊपर मल्लम लगा देता है, हमको फिर तगड़ा कर देता है। तो यू आर ए गुड मुझे बहुत सिस्टर जरूरत है टू। रोज रोज सीखने समझने की। हैं? मुझे बहुत जरूरत है कि मैं रोज समझूं और सीखूं। बिल्कुल। और वो उसकी वो कैसे पूरी होगी? दो चीजों से। एक तो प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना में जाओ बहुत जरूरी है। और जब घबरा रहा हो दिल, ऊंची ऊंची आवाज में ये भजन संहिता के जबूर पढ़ो, और डेली वचन जरूर पढ़ो और प्रार्थना में जाओ और प्रभु से मांगो। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई हम डॉक्ट्रिन नहीं है, ये कोई हम दस्तूर नहीं बना रहे, कोई रीति रिवाज नहीं बना। जब आपका मन करे घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए फास्टिंग करो अपनी मर्जी से। जी अपने और प्रभु के बीच में एग्रीमेंट करो कि प्रभु आज मैं 2 घंटे फास्ट करूंगी, या आधा दिन करूंगी, या पूरा दिन करूंगी, या नहीं करूंगी, या जैसे भी करूंगी। प्रभु ये मेरे तेरे अंडरस्टैंडिंग है, पर जो कहो, जो कहो फिर वो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु से वादा नहीं तोड़ना। अगर कोई मजबूरी आ जाए तो प्रभु को पता है मेरी मजबूरी। पर अगर मजबूरी नहीं आई और वादा तोड़ दिया तो प्रभु नाराज होएगा। फिर तो वो कहेगा मैंने तो तुमसे नहीं कहा था ना कि ये वादा करो, ये तो तुमने किया ना। मैं खुश हो गया तुमने किया, अब तुम तोड़ रहे हो तो काहे को मुझे दुखी कर रहे हो? और अगर तुम्हारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ रही कि नहीं कर पा रहे वादा, तो मुझे पता है, डोंट वरी। प्रभु हमारा इतना समझदार है, इंसान नहीं समझता, पर वो परमेश्वर है। वो यस हमारा बनाने वाला, हमारा सृजन करने वाला, वो कैसे गलती कर जाएगा, है ना। तो प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, सभी भाई आपको भी बहनों God को। bless you. गॉड ब्लेस यू ऑल।